Namaskar. A warm welcome to all of you on your YouTube channel CA Sansar. Myself CA Vivek Khurana, and today we have with us very learned, very respected, very dynamic faculty CA Rajiv Jain ji. Sir, a warm welcome to you. Thank you, Vivek bhai. Last year, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji had launched transparent taxation, honoring the honest. And in this, they have launched taxpayer charter, then faceless appeal, faceless uh, assessment, and later on, they have also started faceless penalty scheme. And now they have proposed for the faceless appeals under ITAT. So today we will discuss what's the impact of these faceless appeals under ITAT, whether it's a beneficial, whether it's a good idea or the bad idea, and because up to CIT level, I think it's okay. Because in judiciary, sometime might be the judge read our face impression, because I have not appeared so many times with the ITAT, but we have with the expert who will guide us regarding this new proposed scheme under this faceless, and even government is also trying faceless assessment scheme under GST. So today we will discuss, and this will be the interactive session. Rajiv ji will discuss what's the complications against this faceless ITAT appeal, faceless appeal under this ITAT. So without taking so much time, once again my sincere thanks to Rajiv ji for giving his valuable time. And I don't think so he need any introduction, but it's my duty for to just give a brief profile, to just read a brief profile of Rajiv ji. Rajiv ji is a practicing chartered accountant in Delhi, Daryaganj, and he is a partner in SSAR, and he speaks normally on the income tax topics. Very renowned faculty, and normally he touch ऑन द टॉपिक जिससे बहुत ज्यादा व्यूज मिलते हैं उनके काफी वीडियोस. इट्स वेरी फेम नॉट ऑन आवर चैनल, इवन सम अदर चैनल्स आल्सो. सो थैंक यू राजीव जी, एंड नाउ इट्स ओवर टू यू. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Vivek bhai. Before I start, lot of good wishes to you for all your future endeavors. और जो भी आप अपनी लाइफ में आपने अपना एजेंडा बनाया है, I wish you on behalf of all the listeners and all the person who are watching this channel, lot of good wishes for your endeavors. And then I take this opportunity to convey my congratulations to casansar.com for doing tremendous professional service. So hats off to you, Vivek Khurana ji, and your entire team. And now I come to my topic. And my topic today is why faceless appeal and proposed faceless ITAT may not be a good idea. By listening the name of the topic, आपको लगेगा जैन साहब तो आज क्रिटिसाइज करने के मूड में आया है. And before I proceed further, let me tell you that your observation is correct. और today मैं इसको क्रिटिसाइज करना नहीं बोलूंगा. We belong to learned faculty, learned class. So whenever there is a proposal or amendment which we are not able to understand or which creates certain doubts in our mind, then it is our duty to convey those suspicions and doubts to the government. और देखिए, we are living in a democratic country. We are governed by Constitution of India. This is a people government for the people. अब वो राजशाही वाली बात नहीं है कि आप राजा के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएंगे. ठीक है, तो लोगों की सरकार है, लोगों के लिए है, और लोग अपनी बात अगर सरकार तक इफेक्टिवली नहीं पहुंचाएंगे तो सरकार कैसे सुन पाएगी. सो दैट इज द एंटायर ऑब्जेक्टिव. और इस वी आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ लॉ. और जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ का फलसफा ये है कि जब हम लॉ की बात करें तो पूरी निर्भय होकर, डर होकर अपनी बात बोले. सो अब माय आइडिया इज नॉट टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, बट ए हेल्दी डिस्कशन कि जो स्कीम हमारे सामने आई है उसके क्या रिपरकशंस होंगे
and what are the doubts in the minds of the public as well as the professional at large. So मैं अपनी बात शुरू करता हूँ. एक फेमस कोट है लॉर्ड हेवर्ड की 1924 में रेक्स वर्सेस ससेक्स एक जजमेंट आया हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इंग्लैंड में, और एक फेमस कोट उन्होंने उस जजमेंट में लिखी, और वर्ल्ड ओवर दिस फेमस कोट हैज बिकम ए लैंडमार्क और फाउंडेशन फॉर एंटायर जुडिशियल प्रोसेस. उन्होंने कहा जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी रेंडर्ड, इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन. न्याय सिर्फ करना नहीं है, दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है. यानी कि जब एक जुडिशियल प्रोसेस पे हम जाते हैं, कोर्ट के सामने हम जाते हैं, तो सिर्फ न्याय देना एक प्रक्रिया नहीं है. जो न्याय की पूरी प्रक्रिया है वो भी पूरी डाउट से परे होनी चाहिए, सस्पिशन से अबव होनी चाहिए. नथिंग टू बी डन विच क्रिएट्स एन इंप्रेशन or suspicion that there is some interference in the course of justice. ऐसा कोई काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे ये हमें लगे कि हमने न्याय की प्रक्रिया को बाधित कर दिया. अब ये जो कोर्ट है, this court is given in regard to when there was a dispute between two private parties. दो, जब हम नॉर्मल कोर्ट्स में हम कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखते हैं, जब कोई सूट फाइल होता है तो सूट इज बिटवीन टू पर्संस, और वो दोनों पार्टियां दे आर ऑन इक्वल फुटिंग. तो जो फेस ऑफ है, जो फाइट है, जो लड़ाई है, जो लिटिगेशन है, जो झगड़ा है, वो दोनों इक्वल पार्टियों के नाम साथ में. बट व्हेन देयर इज अ फेस ऑफ विद द गवर्नमेंट, जब आपका लिटिगेशन सरकार के साथ है, तब सिचुएशन डिफरेंट है. इन केस ऑफ लिटिगेशन विद द डिपार्टमेंट, in case of litigation with the government, this is a face off between unequal parties. यहाँ दोनों पार्टी बराबरी की नहीं है. अब एक तरफ एक असेसिंग ऑफिसर है, एक टैक्स डिपार्टमेंट है, coupled with the power of state and coupled with the power of law. इस बात को आप ये समझ लीजिए कि जो टैक्स ऑफिसर है, जो गवर्नमेंट का आदमी है, he is just like a lawyer, वो एक शेर ऐसा. और जो एसएससी है वो एक बेचारा प्रजा का एक अकेला निरीह प्राणी who is taking on the might of the government. तो वो शेर के सामने एक गाय है. अब whenever there is a face off between a cow and a lion, एक गाय और शेर जब भी आमने सामने आएंगे, there is no rocket science what is going to be the fate, what is going to be the result. ठीक है सर, 100 out of 100 times lion is going to kill cow. कोई इसमें सोचने की बात नहीं है सर. जब भी फेस ऑफ होगा सरकारी डिपार्टमेंट के अफसर के साथ, उसके साथ स्टेट की बाइट है, स्टेट की पावर है, लॉ की सपोर्ट है, और सामने एक प्रजा का एक एसएससी अकेला है, ठीक है, तो वो मारा जाएगा. तो क्या किया कि whenever there is a taxation law या सिविल लॉ की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉ की बात नहीं कर रहे. ये जो कोर्ट मैंने पढ़ी, this was also rendered in case of a civil dispute. जो इनकम टैक्स का डिस्प्यूट है, दैट इज ऑल्सो ए सिविल डिस्प्यूट. या रेवेन्यू लॉ का जो डिस्प्यूट है, दैट इज ऑल्सो ए सिविल डिस्प्यूट. तो वहां जो लड़ाई थी वो दो बराबर के लोगों में थी, और यहाँ जो लड़ाई है वो दो बराबर के लोगों में नहीं है. अब न्याय करना है, देन लॉ हैज प्रोवाइडेड ए सेफगार्ड, ए कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, which is also known as ऑडी ऑल्टरम पार्टिम. एक जुडिशियल jurisprudence का रूल है which is followed in entire judicial system throughout the world. और इंडिया में अंडर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 311(2), इन सारे आर्टिकल्स में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज इनबिल्ट. यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो jurisprudence है, इट हैज फाउंड मैंडेट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को हम इन्फोर्स करते हैं.
अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की वजह से क्या होता है कि ये जो एसएससी है, व्हेनेवर देयर इज अ फेस ऑफ विद द गवर्नमेंट, तो इस एसएससी के पास एक राइट है। वो राइट ये है, राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय ए काउंसिल। किसका अधिकार है कि इसकी जगह जो है वो काउंसिल जाके इसका डिपार्टमेंट के सामने अपीयर हो जाए। बिकॉज द लॉ इज ए कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, इनकम टैक्स इज ए कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, और इनकम टैक्स का जब असेसमेंट कंप्लीट होगा या अपील कंप्लीट होगी, it requires examination of books of accounts. Examination of books of accounts is a complicated subject. It requires examination of records, evidences, appreciation of evidences. It requires cross-examination, and that it requires implementation of law, interpretation of law. तो ये सारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं कि एक प्रजा के एसएससी से, एक इनकम टैक्स पेयर से ये एक्सपेक्ट करना दैट ही विल बी एक्सपर्ट इन ऑल दीज लॉज, और ये सारी चीजों में एक्सपर्ट होगा, और या मैं कहूँ कि एक असेसिंग ऑफिसर से भी ये एक्सपेक्ट करना कि वो इन सब चीजों में एक्सपर्ट होगा, टू माय माइंड दैट विल बी ओवरड्रॉन कंफ्यूजन। तो एसएससी के पास एक काउंसिल को वो असिस्टेंस ले सकता है, हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द एसएससी, और फिर it has been made mandatory in law to provide an opportunity of being heard to the SSC. अब जब हम इनकम टैक्स एक्ट 1922 की बात करते हैं, आज ये पूरी इतिहास मुझे इसलिए खंगालना पड़ रहा है क्योंकि आपको समझ में आएगा इस पूरे डिस्कशन के बाद कि किस तरीके से ये पूरी अदला बदली होने की संभावना है, जिसकी वजह से आज हमें ये नेगेटिव टॉपिक रखना पड़ा, और जिसकी वजह से मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस पूरी प्रोसीडिंग्स को लेकर। 1922 के एक्ट की बात करें तो 1922 के एक्ट में सेक्शन 23, सेक्शन 31 दोनों में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है। हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो सेक्शन 143(2)(1) पढ़े असेसमेंट का, सेक्शन 250 सबसेक्शन 1 पढ़े फर्स्ट अपील का, अपील विद द सीआईटी अपील, या फिर सेक्शन 254 सबसेक्शन 1 पढ़े अपील विद द इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल। हर एक केस में there is an opportunity of being heard to be, this is the right of the SSC, और ट्राइब्यूनल में क्योंकि दोनों पक्ष अपीलेंट हो सकते हैं, डिपार्टमेंट कैन आल्सो बी एन अपीलेंट, तो ट्राइब्यूनल में बोथ द पार्टीज हैव राइट ऑफ बीइंग हर्ड। दोनों पार्टियों को सुनने का अधिकार लॉ में प्रोवाइड किया हुआ है, राइट। अब ये जो सुनने का अधिकार है, ये होता क्या है? अपनी प्रैक्टिस में, अपने एक्सपीरियंस में, बाय एंड लार्ज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, जब आप कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में भी देखते हैं तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स का ऑर्डर नंबर 18 रूल नंबर 3A, वहां पर भी कहा कि ओरल हियरिंग इज द जनरल रूल, यानी ओरल हियरिंग, जो पार्टीज हैं वो जाएं और अपनी ओरल हियरिंग करें, अपनी हियरिंग करें, और ये पार्टीज के डिस्क्रिप्शन है कि वो हियरिंग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। कोर्ट के डिस्क्रिप्शन नहीं है, पार्टी को अधिकार है टू अपीयर फॉर ओरल हियरिंग, वो अपने इस अधिकार को फोरगो करना चाहें तो फोरगो कर सकते हैं। तो अब हियरिंग का मतलब क्या होता है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से समझिए नॉर्मल, हालांकि इनकम टैक्स एक्ट में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अप्लाई नहीं होता, लेकिन बात को समझते हैं सर। वहां क्या होता है? पहले प्लेट फाइल होती है, फिर एविडेंस लेड होते हैं, और उसके बाद ओरल सबमिशन होता है, फिर बिगनिंग होती है तो ओरल सबमिशन होता है। इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है कि असेसमेंट होता है, हमारे पास नोटिस आता है, हम उसके क्वेश्चनर का जवाब देते हैं, और फिर असेसिंग ऑफिसर के पास अपीयर होते हैं और उसको एक एक चीज टिक कराते हैं, चेक कराते हैं, बुक से एग्जामिन कराते हैं, एविडेंसेस से क्रॉस रेफरेंसेस देते हैं। वो क्यों देते हैं? बिकॉज वी मेड हिम अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस ऑफ द एसएससी। यहाँ दोनों बातें हैं, लॉ की भी बात है और फैक्ट्स की भी बात है। जो एसएससी की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि एवरी एसएससी इज पेक्यूलियर, उसकी ट्रांजैक्शन अपने आप में यूनिक है। कोई एक सेट स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं है कि एक एसएससी को आप दूसरे एसएससी से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। तो उस हियरिंग के दौरान आप रिटन सबमिशन भी देते हैं, आप एविडेंसेस भी प्रोड्यूस करते हैं, और एविडेंसेस के साथ साथ आप असेसिंग ऑफिसर को असिस्ट करते हैं। असिस्ट करने के बाद उस ओरल हियरिंग में आप उसके डाउट्स क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इस हियरिंग में क्या होता है? एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, एन अपॉर्चुनिटी इज क्रिएटेड, जहां पे म्यूचुअल लर्निंग भी होती है, क्लियरिंग ऑफ डाउट भी होता है, और एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस भी होता है। और एक दूसरा इसका एग्जांपल है, वी मेड द असेसिंग ऑफिसर रीड अवर रिटन सबमिशन,
जब हम एक कोर्ट में अपियर होते हैं, जब हम ट्राइब्यूनल में अपियर होते हैं, जब हम सीआईटी अपील के पास अपियर होते हैं, तो वी क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी में हमें मालूम नहीं है कि हमने रिटन सबमिशन फाइल कर दी है, वी आर नॉट श्योर कि जिसने मुझे न्याय देना उसने वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, राइट? सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग व्हाट आई डू, I made him read my written submission. I made him understand the facts of my case. I made him understand the implication of law which is arising in my case, and then I supply my viewpoint. Right? अब वहां पर जो असेसिंग ऑफिसर है या सीआईटी अपील है या ट्राइब्यूनल है, उसको कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है, तो दे आस्क क्वेश्चन एंड वी क्लियर दैट डाउट. इन द सेम मैनर जब हम ट्राइब्यूनल में अपियर होते हैं, जो दो दूसरे ऑपोजिट पार्टी जो डीआर है, उस अपॉर्चुनिटी में वी ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर व्यू पॉइंट एंड देयर इज अ हेल्दी इंटरेक्शन. और मैं कहता हूँ दिस इज दैट अपॉर्चुनिटीज फॉर म्यूचुअल लर्निंग. अब जब एक ओपन कोर्ट में एक कवायद होती है, उस ओपन कोर्ट में हम कहें कि एक ही आदमी लर्निंग है और बाकी सब लोग उससे सीखते हैं, ऐसा नहीं है. वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर. और इवन जो उस ओपन कोर्ट में लोग बैठे हैं, they also learn from the other proceedings जो दूसरे के केस में चल रही है. तो that is the kind of opportunity oral hearing is created. अब ये कहना कि आप रिटर्न सबमिशन दे दो, रिटर्न सबमिशन दे दो और ओरल हियरिंग की जरूरत नहीं है. अब यहां पर मेरा ऑब्जेक्शन शुरू होता है सर. देखिए 2019 में आप ई असेसमेंट लेकर, ई असेसमेंट हैज कंप्लीटली अवॉइडेड इंटरफेस बिटवीन द एसएससी एंड द टैक्स ऑफिसर. गवर्नमेंट की कंपल्शन अपनी रही होगी, व्हाटएवर द केस में बी, एंड बाय एंड लार्ज जो ई असेसमेंट से अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो गुड है. एंड व्हाई इट इज गुड कि अप टू ए सर्टेन लेवल जो कुछ मेल प्रैक्टिसेस थी दे आर नाउ अवॉइडेड. अब गवर्नमेंट का सीधा एसएससी के साथ संबंध है और एसएससी से गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कर रही है और असेसमेंट की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर होगी, ऐसा देखने में लगता है. बट ये जो आज हो रहा है, बिकॉज इट इज ए फेसलेस एक्सरसाइज, असेसिंग ऑफिसर को तो ये मालूम है कि हम कौन है, हमें नहीं मालूम कि हमारा असेसिंग ऑफिसर कौन है. हमें ये भी नहीं पता कि हमने जो लिख कर दिया वो सामने वाले को समझ में आया कि नहीं आया. हमें ये भी नहीं पता कि उस सामने वाले ने उसको पढ़ा या नहीं पढ़ा, राइट? तो इस पूरी एक्सरसाइज में व्हेन यू आर, हमारे लिए एसएससी के लिए दिस इज सिचुएशन लाइक वी आर फाइटिंग विद अ मशीन, वी आर फाइटिंग विद अ मशीन. और जब आप एक मशीन के साथ आप फाइट करते हैं और वन वे कम्युनिकेशन होता है आपका, तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि हमारी बात सामने वाले तक पहुंच गई कि नहीं पहुंची. चलिए असेसमेंट में मैंने आपकी बात समझ ली, क्योंकि मैंने इसलिए समझ ली कि चलो कोई बात नहीं, अगर असेसमेंट में कुछ गलती हो जाएगी, नाउ देयर इज एन अपीलेट फॉरम, जो सीआईटी अपील है उसके पास चले जाएंगे और सीआईटी अपील को जाके अपनी बात समझा देंगे, सीआईटी अपील को समझा देंगे. अब ये 2020 में फेसलेस सीआईटी अपील की स्कीम ले आए. फर्स्ट अपील की ये भी फेसलेस होगी. उसका ऑब्जेक्टिव यही है, जो स्कीम लाते हैं उस स्कीम में देखिए उसका नाम रखा ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. अब ये तीनों चीजें कैसे अचीव करेंगी? बाय एलिमिनेटिंग द इंटरफेस बिटवीन द पार्टीज. अभी इंटरफेस डिस्प्यूट रिमूव करने से, एलिमिनेट करने से ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से आती है, दैट वी फेल टू अंडरस्टैंड. वी कैनॉट frame our law with the presumption that everybody in this country is a corrupt person. हम इस तरीके से लॉ को फ्रेम नहीं कर सकते सर. अब देखिए जो सीआईटी अपील की स्कीम 2020 में आ गई, फेसलेस स्कीम आ गई. अब असेसमेंट की स्कीम को देखिए सर. अब आप इम्बैलेंस देखिए किस तरीके से क्रिएट हो रहा है कि असेसमेंट में एसएससी के पास ओरल हियरिंग की, पर्सनल हियरिंग की राइट नहीं है. आपको जो देना है आप रिटर्न सबमिशन दे दीजिए. नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को अगर कुछ जरूरत लगेगी और उनको लगेगा कि आपको सुनना है तो उनके डिस्क्रिप्शन है. पहले क्या था 1922 के एक्ट में, 1961 के एक्ट में या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में डिस्क्रिप्शन किसकी है? एसएससी की, हियरिंग करे या ना करे. ई असेसमेंट में डिस्क्रिप्शन किसकी है? डिपार्टमेंट की, हियरिंग दे या ना दे. आप समझ रहे हैं, बात उल्टी हो गई, सिचुएशन पलट गई. अभी तक पिछले
1922 से आज 2021 में हम हैं, 100 साल का जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है, जो हमारी प्रैक्टिस है, हमने उसको बदल दिया है। अब डिपार्टमेंट की राइट है, ठीक है सर। असेसमेंट, ई असेसमेंट सेंटर में 4 असेसिंग ऑफिसर आपके साथ खेलेंगे, 4 तरह की असेसमेंट यूनिट होगी। अब आप देखिए, जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस गेम कि बैडमिंटन का मैदान है और एसएससी अपने काउंसिल के साथ अपनी शटल और रैकेट लेकर खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसको कहता है कि आपको रिटर्न सबमिशन के अलावा और कुछ नहीं करना है, और डिपार्टमेंट के कम से कम 4 प्लेयर खेलेंगे उसके साथ, राइट। सो इज दिस इक्वलिटी? जो आपने ई असेसमेंट के नाम पे ये जो कन्वर्ट कर दिया गेम ग्राउंड को, जो आपने कन्वर्ट कर दिया, दिस इज हेविली टिल्टेड इन फेवर ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है सर। जब सीआईटी अपील की बात आई, तो सीआईटी अपील में भी जो फेसलेस आप जो स्कीम लेकर आए हैं सर, उस स्कीम में आप कहते हैं कि आप रिटर्न सबमिशन फाइल कर दीजिए, आपको एडिशनल ग्राउंड देनी है तो भी रिटर्न सबमिशन दे दीजिए, एडिशनल एविडेंस देने हैं तो भी रिटर्न सबमिशन दे दीजिए, और कह दिया कि कोई इंटरफेस की जरूरत नहीं है, इट विल बी कंप्लीटली फेसलेस। एक अपील यूनिट ऑर्डर बनाएगी, दूसरी अपील यूनिट उसका रिव्यू करेगी सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉनिटरी कंसिडरेशंस। जो उसका रिव्यू करेगी, अगर उसने उसका कोई वेरिएंस दे दिया तो एक तीसरी अपील यूनिट फिर दोबारा से उसको एग्जामिन करेगी, राइट। यानी 4 असेसिंग ऑफिसर खेलेंगे, 3 सीआईटी अपील खेलेंगे, है ना, और एसएससी के पास बोलने की राइट नहीं है, एसएससी बोल नहीं सकता, ठीक है, आपको सिर्फ क्लिक कर देना है। अब ये 4 ऑफिसर और 3 सीआईटी अपील, अब देखो जो हमारा पुराना जो पास्ट एक्सपीरियंस है कि जब भी हम देखते हैं कि सुपीरियर अथॉरिटी को नीचे वाली अथॉरिटी का कोई मैटर रिव्यू करना है, या हमने उसको कोई पावर दे दी, जैसे रीओपनिंग के केस में सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड कर देंगे। अब लॉ तो ये सोचकर रहा है कि जो सुपीरियर ऑफिसर है ही विल एक्सरसाइज हिज सुपीरियर विजडम, और सुपीरियर विजडम के साथ में वो जो है सारे फैक्ट्स को चेक करेगा और उसके बाद अपनी सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करेगा। बट इन प्रैक्टिकल क्या होता है? इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस ओनली। असेसिंग ऑफिसर से फाइल होती है और उसने सीनियर ऑफिसर ने उस पर इनिशियल कर देना है, दैट्स ऑल। तो यहां पर क्या कहा कि जो राइट ऑफ ओरल सबमिशन है, वो जो आपका रीजनल अपील सेंटर का सीआईटी अपील होगा, जो प्रिंसिपल सीआईटी होगा, जो डीजी होगा, वो डिसाइड करेगा, एसएससी रिक्वेस्ट कर सकता है, वो डिसाइड करेगा कि राइट टू अपील देनी है, ओरल हियरिंग देनी है कि नहीं देनी, ठीक है सर। तो यहाँ पर सिचुएशन उल्टा हो गया। अब मैं इसको दूसरी तरीके से बात को समझने की कोशिश करता हूँ कि चलिए आपने एक टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के एक सेटअप क्रिएट किया है कि यू वांट टू रिड्यूस लिटिगेशन, कि लिटिगेशन की क्वालिटी अच्छी हो जाए। और वो क्वालिटी अच्छी क्यों हो रही है विवेक जी, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि सीएजी की रिपोर्ट्स है। अब सीएजी की रिपोर्ट्स ने असेसमेंट्स के ऊपर कमेंट किया है। एक रिपोर्ट है, मैं उसका हवाला यहाँ जरूर देना चाहूंगा, रिपोर्ट नंबर 14 ऑफ 2020, ये सीएजी की रिपोर्ट है। इन्होंने कहा कि साहब ये जितनी भी असेसमेंट होती है, उन्होंने कुछ सर्च केसेस को उन्होंने कवर किया, और सर्च केसेस को कवर करने के बाद उन्होंने बताया कि जितनी भी सर्च केसेस में एडिशन किया, जहां पे आपने स्पेशलाइज सेंट्रल सर्कल है आपका, ठीक है, और पूरी इन्वेस्टिगेशन की टीम लगी हुई है, यानी पूरे डिपार्टमेंट का नेटवर्क लगा हुआ है, और जहां पर जो एडिशन होती है आईटीटी तक जाते जाते 23% से ज्यादा एडिशन आपकी सस्टेन नहीं कर, यानी कि मोर देन 75% आपकी जो एडिशन है वो टूट जाती है। तो ये जो आपकी क्वालिटी ऑफ असेसमेंट है, आप अपनी क्वालिटी ऑफ असेसमेंट इंप्रूव करिए, आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को दुरुस्त करिए, हमें किसी एसएससी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप नाम तो ले रहे हैं अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दुरुस्त करने का, और राइट आप मेरी एब्रोगेट कर रहे हैं। बात समझ में? आपको अपना घर ठीक करना है तो आप मेरे अधिकारों को क्यों छेड़ रहे हैं? आप एक एसएससी को जो 100 साल से मेरा एस्टेब्लिश प्रोसीजर है, आप उसको जो छेड़ रहे हैं, इट हैज क्रिएटेड अ सस्पिशन इन अवर माइंड। और कोई भी जो प्रोसीडिंग है वो सस्पिशन के हिसाब से नहीं चल सकती। अब इतने इंथुसियास्टिक हो गए कि अब ले आए 221 के बजट में दैट आईटीएटी विल आल्सो बिकम फेसलेस ऑन द लाइंस ऑफ सीआईटी। अब देखिए
जो सीआईटी अपील है, सीआईटी अपील का जो फॉर्मेट है, इट इज मेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द एसएससी। ये खाली एसएससी के लिए सर, ये सीआईटी अपील के पास जो बेनिफिट मिलेगा एसएससी को मिलेगा। जो ट्राइब्यूनल के पास अपील होगी वो दोनों करेंगे, एसएससी भी कर सकता है। इफ डिपार्टमेंट इज एग्री, डिपार्टमेंट कैन आल्सो फाइल अपील बिफोर आईटीएटी। अब कहते हैं कि आईटीएटी को भी फेसलेस कर देंगे। अभी आपकी जो स्कीम है ई असेसमेंट की है, या फिर वो जो 2019 में आई, या जो ई अपील की है, ये दोनों अपने शैशव काल में है, दे आर इन देयर इन्फेंसी, अभी वो स्टेब्लिश नहीं हुई है। आपने 100 साल पुरानी स्टेब्लिश प्रैक्टिस को छेड़ दिया है और एक नई प्रैक्टिस आप इंपोज कर रहे हैं। तो आप कम से कम इतना तो इंतजार करें कि वो प्रैक्टिस स्टेब्लिश हो जाए, उसके ऊपर हमारा फेथ बन जाए, और उसके बाद आप ट्राइब्यूनल के लिए थोड़ा वेट करते हैं। अभी जो सीआईटी अपील की जो फेसलेस स्कीम है, उसमें जो डिनायल ऑफ ओरल हियरिंग है, ठीक है सर, उसके लिए ऑलरेडी रिट पिटिशंस आर एडमिटेड, दे आर पेंडिंग बिफोर वेरियस कोर्ट्स। और दिल्ली में भी एक लक्ष्य बुद्धि राजा की दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटिशन पेंडिंग है, दैट डिनायल ऑफ ओरल हियरिंग और पर्सनल हियरिंग इज वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो अभी इतनी इंथुजियास्टिकली हम ट्राइब्यूनल की अपील और ले आए, और वो भी फेसलेस ले आए। सो अब होगा क्या आने वाले टाइम में? अब सीआईटी अपील ने अपना ऑर्डर बनाया, ऑर्डर बना के पहले मेरा असेसमेंट, कोई अनफॉर्चुनेट एसएससी है, उसका पहले असेसमेंट खराब हो गया, ठीक है सर। अब फेसलेस है, जो रिटर्न सबमिशन लिखे वो हमारा जो असेसिंग ऑफिसर है वो ठीक से उसको समझ नहीं पाया। अब देखिए, रिटर्न सबमिशन में जब हम कोई बुक भी पढ़ते हैं तो रिटर्न सबमिशन की अपनी लिमिटेशन है कि एक तो लिखने वाला इतना एफिशिएंट हो कि वो लिख पाए, उसको पढ़ने वाला इतना समझदार हो कि जो लिखने वाले ने लिखा है वो उसको ग्रास्प कर ले, और पढ़ने वाला इतना भी समझदार हो कि फिर वो उसको रिप्रोड्यूस कर ले। तो ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तब कहीं जाके रिजल्ट ठीक आएगा, वरना एक इंटरप्रिटेशन में गलती हो गई तो आगे तक इंटरप्रिटेशन सारी की सारी गलत हो जाएगी। अब एक अनफॉर्चुनेट एसएससी है जिसके रिटर्न सबमिशन को असेसिंग ऑफिसर ठीक से समझ नहीं पाया सर, उसके फैक्ट्स गलत रिकॉर्ड हो गए, ठीक है सर। सीआईटी अपील के पास आ गए, सीआईटी अपील भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है सर, रिटर्न सबमिशन फाइल कर दीजिए। अब रिटर्न सबमिशन की अपनी लिमिटेशन है, जो बात कह के समझाई जा सकती है और डेमोन्स्ट्रेट की जा सकती है, वो चीज आप रिटर्न सबमिशन में सामने वाला पढ़ लेगा ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते। और ये एज्यूम करना इतना आसान होता, तो आपको मैं एक बात मेरी थोड़ी सी आपको हो सकता है कि ऑकवर्ड लगे, लेकिन देखिए हमारे जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और जो पिछले प्रधानमंत्री हैं, दोनों में इसी बात का फर्क है। और प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इज वेरी गुड ओरेटर, उन्हें सुनाने की बात समझ में आती है कि लोग उनकी बात को सुनते हैं, ठीक है सर। अब यही बात अगर वो लिख के दे दें, अब हम प्राइम मिनिस्टर साहब से कहें कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप अपनी बात हमें लिख कर दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे जब वक्त मिलेगा। या हमारी जो वित्त मंत्री साहिबा है, अब देखिए जब आप बजट की जो स्पीच है, इट ऑलरेडी फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बजट डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपको भी सुनने का मतलब पता है ना, तभी तो आप पार्लियामेंट में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो और पूरे देश को अपनी बजट की स्पीच पढ़कर सुनाते हो। तो सुनने के इम्पैक्ट को आप ऐसे डाइल्यूट नहीं कर सकते, सुनने का एक अपना इम्पैक्ट है, एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और आपसे बेटर कोई नहीं समझता। तो ये जो सुनवाई की जो बात खत्म करने जा रहे हैं सर, ये किसी भी तरीके से गले नहीं उतरती, और अभी तो ये सीआईटी अपील वाली बात गले नहीं उतर रही है। और आने वाले टाइम में जब आईटीएटी फेसलेस हो जाएगा, तो पहले असेसमेंट खराब हुआ, फिर फर्स्ट अपील खराब हुई, और उसके बाद ट्राइब्यूनल की प्रोसीडिंग में जब आप अपनी बात कह नहीं पाओगे, और ट्राइब्यूनल इज द लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, यानी कि जो आपके फैक्ट्स भी अगर गलत रिकॉर्ड हो गए इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के लिए तो हाईकोर्ट चले जाएंगे। तो क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जो अपीलेट और असेसमेंट मैकेनिज्म है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इट विल बिकम इनइफेक्टिव। तो उससे क्या होगा, लिटिगेशन बढ़ेगा कि घटेगा? लिटिगेशन बढ़ेगा, इट विल रीच हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट तक पहुंच जाएगा। और हमारे हिंदुस्तान में सफिशिएंट jurisprudence is available on the principle of natural justice। और हमारी बड़ी एक रिक्वेस्ट है
हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से और सीबीडीटी से कि देखिए, जब आप 100 साल पुरानी प्रैक्टिस को बदलना चाह रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि वंस आप सुबह उठे और सुबह लगा आपको कि नहीं, ये पुराने 100 साल से जो कुछ कर रहे थे, दे वर द पीपल विद द लेसर विजडम, और हम लोग इसको पूरे व्यवस्था को ठीक कर देंगे। और ट्राइब्यूनल की तो परफॉर्मेंस के बारे में मैं विवेक जी आपको बताऊं, 95%, more than 95% of the decisions of ITAT are sustained. इससे बढ़िया परफॉर्मेंस किसी और ऑर्गेनाइजेशन की, किसी इंस्टीट्यूशन की हो नहीं सकती। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 80 साल हो गए ट्राइब्यूनल को फंक्शन करते हुए। 1941 में ITAT was established. It was one of the first tribunal in the administrative tribunal, और बाकी ट्राइब्यूनल इसकी लाइन पर बनाई। एंड दिस इज अ हाईली सक्सेसफुल, रिलायबल, और लोगों में फेथ है कि अगर कहीं की नीचे इनजस्टिस हो जाएगा तो ट्राइब्यूनल में हमें जस्टिस मिल जाएगा। तो आप उस फेथ की जड़ पर बिना किसी स्टेक होल्डर से चर्चा किए आप एक कानून लेते आते हैं और कहते हैं कि हमें एलिमिनेशन ऑफ इंटरफेस करना है, हमें लोगों का इंटरेक्शन खत्म करना है। सो दिस इज नॉट अप्रिशिएटेड वेल। और जो सुनने का राइट है, ये अधिकार है एसएससी का, जो फाइट अमंग द अनइक्वल्स है, उस अधिकार को ऐसे वंचित ना करें। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं, पीएन ईश्वर अय्यर वर्सेस रजिस्ट्रार, मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड, एमपी इंडस्ट्रीज, सुनील गर्ग वर्सेस मुन्ना लाल हलवाई। व्हाट दे हैव हेल्ड इज that oral or personal hearing is a general rule and denial of oral hearing is exception. अब क्या कर रहे हैं आप? उल्टा कर रहे हैं इसका। आप उल्टा क्या कर रहे हैं? that denial of oral hearing or personal hearing is a general rule and oral hearing is exception. तो अगर आप ये कुछ उल्टा करने जा रहे हैं सर, so this should not be your intention, और आप सभी एसएससी की और सब लोगों की बात को सुने और समझें। और मैं इसको इस तरीके से अगर अपनी बात को रखूं कि अगर आप मुझसे कोई पूछे कि आपकी डिमांड क्या है, तो बड़ी सिंपल है सर। जब सीआईटी अपील अपना ऑर्डर फ्रेम करे, तो ऑर्डर फ्रेम करने के बाद ड्राफ्ट ऑर्डर बनाए, और उस ड्राफ्ट ऑर्डर में यदि उसने अपीलेंट की अपील एक्सेप्ट कर लिए, देन इट इज फाइन, मुझे ओरल हियरिंग की कोई जरूरत नहीं। इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट माय अपील, then in the interest of natural justice, based on the principle of natural justice, you should provide us an opportunity to the SSC to make oral submissions. ठीक है सर, और उसके बाद आप उसके ऊपर कोई व्यू लें। तो with this एक छोटी सी कहानी सुना के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा विवेक जी, कि अभी जो सीएजी ने कमेंट किया, वो कमेंट किया कि असेसमेंट की क्वालिटी थोड़ी सी पुअर है और गवर्नमेंट को अपने असेसमेंट की क्वालिटी को सुधारना है। तो असेसमेंट की क्वालिटी सुधारने के लिए आपने एसएससी की राइट्स के ऊपर हमला कर दिया, आपने ओरल हियरिंग डिनाई कर रहे हैं। तो मुझे एक बुढ़िया की कहानी याद आ गई कि एक बुढ़िया को देखा लोगों ने कि वो सड़क पर कोई ढूंढ रही थी। तो लोगों ने पूछा, माता जी आपका क्या खो गया? तो बुढ़िया बोली कि मेरी सुई खो गई। तो बहुत से लोग उस सुई को ढूंढने लगे, आपने सुनी होगी कहानी। तो सुई मिली नहीं, काफी लोग थक गए। तो बुढ़िया से पूछा, माता जी आपकी सुई एग्जैक्टली गिरी कहाँ थी? तो बोले जी वो सुई अंदर झोपड़ी में गिरी थी। तो लोगों ने अपना माथा पीटा कि माता जी आप ये सड़क पर क्यों ढूंढ रही हो? बोले अंदर अंधेरा है। सो दैट शुड नॉट बी द इंटेंशन ऑफ द लॉ कि अंदर अंधेरा है और आप अपने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त ठीक से नहीं कर पा रहे और आप अपना बर्डन उठा के एसएससी के कंधे पर रख दें। सो दैट शुड नॉट बी द इंटेंशन। और चाहे वो फेसलेस सीआईटी अपील है या वो फेसलेस आईटीएटी है, आप जो भी स्कीम लेकर आए सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करें, उनको विश्वास में लें, और हमारे दिमाग में यदि कहीं भी कोई शक की गुंजाइश है तो पहले उसका निराकरण करें और उसके बाद आप ये स्कीम लेकर आए। सो विद दिस आई कंक्लूड माय डेलिब्रेशन हियर विवेक जी, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आई विल बी डेफिनेटली सर, really very nice presentation जो आपने बताया। And one thing I just want to add, yes, you are very right
it's a very nice initiative by our Honorable Prime Minister Modi ji, because he has a vision. But you know, it's not his duty कि वो check करे कि क्या problem है, क्या issues है. Like just I want to give one example. एक उन्होंने start किया था स्वच्छ भारत अभियान. It's really wonderful idea. But लोगों को क्या लगता है कि हर जगह मोदी जी आके झाड़ू लगाएंगे. That's not possible. And I am totally agree with you कि जो 100 years का आपका था उसको आप चेंज कर रहे हो, तो लेट्स फर्स्ट डू इट एट CIT अपील लेवल. आप उसके लेवल पे चेक करिए, आप उसकी सक्सेस देखिए, क्या इश्यूज है. आफ्टर दैट यू कैन प्लान इट एट द ITAT लेवल. डेफिनेटली. और दूसरी बात है जो अफेक्टेड पार्टी है. देखिए, मैंने आपको कहा कि अफेक्टेड पार्टी SSC है. आप अकेले स्टेक होल्डर नहीं है. जब टैक्स का लिटिगेशन होता है, गवर्नमेंट इज नॉट द ओनली स्टेक होल्डर. स्टेक SSC की भी लगे. तो आप SSC से, ट्रेड एसोसिएशन से, प्रोफेशनल की बार एसोसिएशन से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मैटर पे आप पहले स्टेक होल्डर्स का डिस्कशन करिए. आप अपने ड्राफ्ट स्कीम पे ओपिनियन लीजिए, देन कम आउट विद योर स्कीम. एग्जैक्टली. अदरवाइज द सेम थिंग सर, जो सेम इनका हो जाएगा जैसे वो GST लेके आए थे विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, कि स्टार्टिंग में ही आपने कर दिया कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा, कुछ एडिशन नहीं हो पाएगा, आपको मंथली रिटर्न जाएगी. नाउ दे आर कमिंग, वो पुराने स्टार्टिंग से आ रहे क्वार्टरली रिटर्न जाने. तो स्टार्टिंग से ही आप अगर कुछ इसमें. बिल्कुल, आपने विवेक जी बिल्कुल सही बात की. हमारा आज इस डेलिब्रेशन को ओपन करने का और इस मंच पे ये पॉइंट डिस्कशन करने का एक ऑब्जेक्ट ये है कि जो बात है, जो पॉइंट है, ये गवर्नमेंट तक पहुंच जाए कि आप कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें. यस, एग्जैक्टली. आप एक लॉ बनाएं, फिर आपको उसको बैकआउट करना पड़े और पब्लिक में ह्यू एंड क्राई हो, प्रोफेशनल्स के साथ ह्यू एंड. देखिए, अभी इसमें डायनेमिक ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं. अब डायनेमिक ज्यूरिसडिक्शन ट्राइब्यूनल का क्या होता है? अभी दिल्ली ITAT में मैंने किया तो मैं दिल्ली हाई कोर्ट जाऊंगा. अब बम्बई ITAT ने केस किया तो मैं बम्बई हाई कोर्ट जाऊंगा. सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी देयर. तो इट्स नॉट अभी जो है ना SSC है या प्रोफेशनल है. देखिए, ITAT को एक बड़े सर उठाकर देखते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन से हमें न्याय मिलेगा, और यदि उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा तो जितने भी टैक्स प्रोफेशनल्स हैं या SSCs हैं, उनके मन में डर बैठना स्वाभाविक है. और यदि उनके मन में डर बैठता है तो सर न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी, और जो ऑब्जेक्ट के लिए आप स्कीम लेकर आए, दैट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज डिफीटेड. और आप एक बात मैं मानता हूं कि हमारे देश में पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन है. अब पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन को, अब देखिए, अपना लिटिगेशन का बैकलॉग खत्म करने के लिए आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते. दैट इज द. देखिए, हमारे संविधान की बड़ी खूबसूरती है विवेक जी, मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा 1 मिनट का समय लेकर, कि हमारे संविधान में डिले, तो जो हमारे डाउट्स हैं उसको मॉडिफाई करके फिर आप स्कीम लेकर आएंगे. जो प्रेजेंट फॉर्म में जिसमें आप राइट अपील की स्कीम लेकर आए, दैट डज नॉट रिसीव, इट इज नॉट रिसीव्ड वेल विद द SSC एज वेल एज द टैक्स प्रोफेशनल्स. ट्रू. और एक जो आपने वो एक अपॉर्चुनिटी को बीइंग हर्ड बताया, दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Even either it's on the CIT appeal or the ITAT level, it's the must be there. वो कहीं ना कहीं ये skip हो रहा है from these faceless appeals or this one opportunity of being heard जो है हमारी. देखिए, देखो बात क्या है कि मैं I have the opportunity of handling voluminous cases और बल्कि केसेस हैं. अब कई बार देखिए, जब बल्कि केसेस होते हैं, किसी केस की पेपर बुक अगर 2000 पेज की है, 3000 पेज की है, तो उसको पहले खुद समझना है ना, फिर सामने वाले को समझाना और फिर उसको रिप्रोड्यूस कराना, ये कोई साधारण आसान काम नहीं है. आप बंद कमरे में बैठ के एक आदमी को रिटन सबमिशन लिख के दे देंगे हम 200 पेज के, और वो उसको पढ़ लेगा, उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा विदाउट हैविंग एनी डाउट. दिस इज टू मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ए पर्सन. तो मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ, दो वी आर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट वी आर नॉट केपेबल ऑफ राइटिंग वेल. इवन ऑल ऑफ अस आर नॉट केपेबल ऑफ oral hearing, or all of us are not good orators. So हर आदमी की अपनी लिमिटेशन होती है. किसी का लॉ पॉइंट स्ट्रांग होता है, कोई लिखने में स्ट्रांग होता है, कोई बोलने में स्ट्रांग होता है. लेकिन जब आप एक हियरिंग करते हैं तो हियरिंग में उन सब चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, तभी आपका उसमें से रिजल्ट निकलेगा और तभी आपके साथ न्याय होगा. तो न्याय की प्रक्रिया में अभी फिलहाल इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है. इट हैज टू बी एड्रेस्ड. So thank you very much Rajiv ji. So I hope might be मैम निर्मला सीतारमन जी या फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई इस वीडियो को देखे, एंड
go on to the appropriate authority, and after that they can take the right decision. And even I want to ask our members, or all the respected members, if you have any other opinion, if you have any discussion, if you want to give your opinion, you can write into the comment box, that we will discuss with later on with the Rajiv ji. Definitely आप इसमें comment box में लिख सकते हैं अपने comments की what you think about this proposed faceless ITT appeal. And even one more thing, I just want to ask everyone, please also like this video, because बहुत मेहनत करते हैं सारे speakers, so it's just a appreciation for everyone. And once again, my sincere thanks. Rajiv ji, if you want to say something after your conclusion remarks. Yes sir. नहीं बस ठीक है, आप इसी तरीके के वीडियो बनाते रहिए, और मैं देखता हूँ कि ऐसे वीडियोस का इम्पैक्ट होता है, और इम्पैक्ट होता है, वो बात सुनी जाती है। और मुझे भी कुछ दिन पहले बहुत एक दोस्त मिले पुराने, और फिर मेरे पास कुछ फोन आए, बड़ी दूर दूर से फोन आए, बोले सर हमने आपका वीडियो देखा था। तो अब सोशल मीडिया की पहुंच इतनी है कि जिन लोगों तक जैसे जहाँ ना पहुंचे तभी वहां पहुंचे कभी, तो ये सोशल मीडिया का काम ऐसा हो गया कि जिन लोगों से हमने कभी सोचा नहीं था कि वो लोग भी उन लोगों तक हमारी बात पहुंच पाएगी, तो सोशल मीडिया पहुंचा देता है। तो मैंने ये जो आपने जो सीए संसार का जो आपका चैनल है और जो आपकी रीच है, वो डे बाय डे बहुत इंक्रीज भी हो रही है, और बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हो, और ये आवाज का इम्पैक्ट होता है। और इस वीडियो को कतई ये ना समझे कि वी आर हियर टू क्रिटिसाइज, वी आर स्टूडेंट ऑफ लॉ, और हमें हमारे मन में यदि प्रश्न है, हमारे मन में डाउट है, तो वो रखने का पूरा अधिकार है। Exactly, everybody have their right, they can speak. If something is wrong, it's because as a citizen of India, it's our duty कि हम अपनी वॉइस गवर्नमेंट तक पहुंचाएं कि ये यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, might be they are not aware, या कई बार नहीं समझे या सोचा नहीं होगा, feedback. So this is just like our feedback. So once again, my sincere thanks to all of you. Thank you very much, sir. Thanks a lot. Thank you, Vicky. Namaskar.